নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি মুফতি মুস্তাফাৰ পত্নী আৰু ভাতৃক আটক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মুফতি মুস্তাফাক যেটো আটক কৰা হৈছে খুদাপোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু শেহতীয়া যি খবৰ আমি 1 বজাৰ বাতৰিটো জনাইছিলো যে মুফতি মুস্তাফাৰ পত্নী আৰু ভাতৃক আটক কৰিছে জাকাৰিয়া আহমেদ ভাতৃৰ নাম হৈছে জাকাৰিয়া আহমেদক আটক কৰা হৈছে দুয়োকে ইতিমধ্যে মইৰাবাৰী আৰু খুদাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমান জাগিৰোডলে দুয়োকে লৈ যোৱা হৈছে আমি পুনৰবাৰ কৈছো জেহাদী বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰু যেহেতু ধাৰাবাহিক অভিযান আৰু তাৰ মাজতে কালিৰ দিনটোত এনআইএ অভিযান চলাইছিল মৰিগাঁৱত এনআইএ অভিযান চলোৱাৰ পিছতে জেহাদী কবলত পৰিছিল জেহাদী আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰু খুদাপোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু তেনেকৈ কালিৰ দিনটোত 12টাকৈ জেহাদী সন্দেহজনক জেহাদীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে খুদাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ঠায়ে ঠায়ে তাৰ মাজতে মৰিগাঁৱত যেহেতু প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে মৰিগাঁৱত ইতিমধ্যে খুদাপোছা অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোত কোৱা হৈছে যে এছডিজিপি গৰাকী উপস্থিত হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে আৰু মুফতি মুস্তাফাৰ পত্নী আৰু ভাতৃকো ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে খুদাপোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে পুনৰ কৈছো জেহাদী এক বৃহৎ জাল ইতিমধ্যে পেলাইছে আৰক্ষীয়ে এই কথা অনুসন্ধানৰ অন্তত জনাইছে আৰু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানো অব্যাহত আছে বা এনআইএ অভিযান চলাই আছে বা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ক্লু পাইছে যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ পাইছে ক'ত কেনেকৈ জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলি আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেনেকৈ সদস্য ভৰ্তি কৰি থকা হৈছে সকলোবোৰ আৰক্ষীৰ হাতত ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰমাণ সহ আছে যুগুত কৰিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে অভিযান এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আমি পুনৰবাৰ কৈছো মুফতি মুস্তাফা যাক কালি আটক কৰা হৈছিল আৰু ভাতৃ আৰু পত্নীকো ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মইৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে খুদাপোছা কৰি জাগিৰোডলে বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে 12 জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰক্ষী এনেধৰণে তৎপৰ হৈ আছে আজি জাগিৰোডলে পৰিস্থিতিৰ বুজ লবৰ বাবে পুনৰ এবাৰ আমি জনাও যে সঞ্চালক আৰক্ষী বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং আজি উপস্থিত হোৱাৰ কথা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 2 জেহাদীক জেৰা কৰিব জিপি সিঙে অসম আৰক্ষীৰ লগতে এনআইএ দলেও জেহাদীক জেৰা কৰিছে বঙাইগাঁও বৰপেটা মৰিগাঁৱৰ লগতে হাতীগাঁৱতো 12 জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মুঠতে 12 জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই জেহাদীক যেনেধৰণে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলি আছে সদস্য ভৰ্তি বা ক'ৰ পৰা জেহাদীৰ জন্ম হৈছে সকলোবোৰ বা অসমত কেনেধৰণে তেওঁলোকে নেক্সাছ তৈয়াৰ কৰিছে কেনেধৰণে কাৰ্যকলাপ কৰি আছে এই সকলোবোৰৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে আৰক্ষী আৰু বিশেষভাৱে কোৱা হৈছে যে হয়তোবা মাদ্ৰাসা সমূহৰ পৰাই এই কাৰ্যকলাপ চলি আছে গতিকে মাদ্ৰাসা সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো অনুসন্ধানৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে বা মাদ্ৰাসা প্ৰসংগ বাৰম্বাৰ আহে কিন্তু কেনেধৰণে ইয়াৰ সদস্য ভৰ্তি কৰা হয় কেনেধৰণে এখন জাল পেলোৱা হয় কেনেধৰণে স্থানীয় লোকক এই সমগ্ৰ জালখনত সুমুৱাই পেলোৱা হয় বিশেষকৈ জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে কেনেকৈ জড়িত কৰাই পেলোৱা হয় এই সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী ইতিমধ্যে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে জেহাদী কাৰ্যকলাপ ক'ত ক'ত চলি আছে বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিও মইৰাবাৰীৰ পৰা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা মুফতি মুস্তাফা যাক কালি আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গতিকে মুফতি মুস্তাফাৰ পত্নী আৰু ভাতৃক বৰ্তমান আটক কৰি খুদাপোছা কৰি জাগিৰোডলৈ লৈ অনা হৈছে कौन आते थे क्या है ये सब पता करने के लिए एविडेंस कलेक्शन के लिए ले आए हैं और मुस्तफा घर का जो अभियान चलाছে मुझे तलाशी चलाছে मोबाइल नहीं ये तो तलाशी तो चलता रहेगा उसने मतलब लोगों को ले आए हैं बाहर से वहाँ बच्चों को पढ़ाया है और ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये सब एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उनके घर में मदरसा में ये सब तो तलाशी तो चलता रहेगा मोबाइल उद्धार हुआ पता नहीं अभी तक पता नहीं और भी मदरसों में इन्वेस्टिगेशन चलेगा अगर कुछ नहीं अभी तक और कोई मदरसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है अगर कुछ और मिलेगा तब एज पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा 2 आदमी अरेस्ट हुआ है মাদ্ৰাসাত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে পঢ়িবলৈ আহিছিলে তেওঁলোক মৰিগাঁৱৰ নে বেলেগ ঠাইৰো আছে नौगांव से कोई है ডিমাপুৰ এনেকুৱা পাইছে नहीं इस मदरसा में तो नहीं मिला है এখন মাদ্ৰাসাত মেম এতিয়ালৈ কি আপডেট আছে কিবা আৰু কিবা নতুন তথ্য পাইছে नहीं अभी तक इन्वेस्टिगेशन का ये तो पहला है ना अभी तो आगे बढ़ाने से ही बाकी पता चलेगा ठीक है अभी स्टूडेंट्स को एक एक करके पूछताछ शुरू होगा उनका वो तो 43 स्टूडेंट्स थे वहाँ तो अभी एक स्टेटमेंट लेंगे क्या पढ़ाया गया है और क्या क्या शिक्षा दिया गया है ये तो स्टूडेंट्स के पूछताछ के बाद ही पता चलेगा मैंने कौन सा लैंग्वेज का बुक लिया है अरबिक का बुक है और बाकी कुरान है बाकी जो मदरसा में यूजुअली जो मिलता है वैसे ही बुक्स कोई अभी तक ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर कुछ मिला नहीं है 2019 में 4 आदमी आए थे फिर उसके 1.5 साल बाद 3 और आदमी आए थे
और कुछ 6 महीने पहले 2 आदमी आए थे। तो अभी तक इतना ही रिवील किया है। ये लोग अभी तक जो जैसे समझ में आ रहा है बांग्लादेश के लोग हैं। ठीक है, इसका तो कोई खबर हमारे पास नहीं है। জাগিৰোডৰ পৰা এয়া আছিলে সংবাদমেল, এছপিগৰাকীৰ সংবাদমেল আৰু সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত অৱগত কৰালে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম। আৰু অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী হৈছে। সমগ্ৰ দেশতে দাহন কৰিব 30,468 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ। দেশৰ লগতে গুৱাহাটীতো দাহন কৰিব ড্ৰাগছ। গুৱাহাটীত দাহন কৰা হ'ব 6,761 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ। দিল্লীত দাহ কৰা হ'ব 19,320 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ। গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে দাহন কাৰ্যসূচী হ'ব। আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বাৰ্মা খেলপথাৰত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী। দৰং, কামৰূপ, নলবাৰী, মৰিগাঁও জব্দকৃত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী দাহন। কৰিমগঞ্জত জ্বলিল 68 কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। মাজুলীতো জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। গুৱাহাটীৰ পানীখাইতে ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী। মহানগৰ আৰক্ষী এনচিবিৰ পৃথকে পৃথকে ড্ৰাগছ দহন। মহানগৰ জিলাৰ 18খন থানাৰ অধীনত জব্দ হোৱা ড্ৰাগছ দহন। এনচিবিয়ে জব্দ কৰা 7,261 কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় সামগ্ৰী দহন। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেহেতু ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব, আজি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে, হাতত লোৱা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ঠাইত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাম যে ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী যিহেতু কৰা হৈছে, গতিকে মাজুলীত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ দহন কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিতিত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে দহন কৰা হ'ব। পানীখাইটিৰ পৰা আমি কিছু সময় পূৰ্বে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ তাত আছে, গতিকে ভাস্কৰে আমাক দেখুৱাইছিলে আৰু কোৱা হৈছে যে যিহেতু বৰ্তমান এক হিচাপ নিকাচ কৰি থকা হৈছে যে কিমান মূল্যৰ এই ড্ৰাগছখিনি বা এই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি। ড্ৰাগছ দহন মাজে মাজে যিহেতু হৈ আছে, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান যিহেতু চলি আছে, গতিকে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হয়। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ড্ৰাগছ যিহেতু জব্দ কৰা হৈছে বা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয়। বিভিন্ন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হয়। বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰি সৰবৰাহকাৰীয়ে ড্ৰাগছ আনে। গতিকে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বৰ্তমান যিহেতু চলি আছে, গতিকে তাৰ পিছতে আমি কেইদিনমান পূৰ্বেও আমি দেখুৱাইছিলোঁ এনেধৰণে জব্দকৃত যিসমূহ ড্ৰাগছ থাকে সেইসমূহ জ্বলাই দিয়া হয় আৰু যাক ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী বুলি কোৱা হয়। গতিকে আজিৰ দিনটোত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে VC যোগে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী আছে। বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত মাজুলীতো ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে। কিন্তু আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এক সংবাদমেল চণ্ডীগড়ৰ পৰা আমি দেখুৱাম। के बीच में 20,000 करोड़ के मूल्य का ड्रग पकड़कर अब इसको नष्ट करने का अभियान भारत सरकार के द्वारा। कहां 768 करोड़ रुपए और कहां 20,000 करोड़। ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता सही। जरूरत है वो रास्ते पर गति बनाने, जरूरत है वो रास्ते पर श्रद्धा बनाने, और जरूरत है वो रास्ते पर अभी भी थोड़े जो लूप होल्स बचे हैं उसको समाप्त करने में। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय में आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर भारत सरकार की गंभीरता को हम राज्य से तहसील, जिला और जिले से तहसील और तहसील से गांव तक पर्कोलेट करना। इसलिए इस सेमिनार को हमने ये 5 राज्यों का सेमिनार कर। देश में 2 क्षेत्र ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट और देश का उत्तरी विभाग, जहां की सरहदों से ड्रग आता है। और यहां पर क्योंकि सरहद है इसलिए वो राज्यों का भी तो कोई दोष नहीं, ड्रग आने का रास्ता है। तो सबसे पहले चपेट में यहां के युवा आए और एक सिनर्जी के साथ ये लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। नारकोटिक्स के संबंधित जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, वो सभी एजेंसियों के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो और सभी के प्रयास एक दूसरे के पूरक। सभी अलग अलग दिशा में प्रयास करें तो परिणाम नहीं मिलेगा।
सभी एजेंसियां एक ही दिशा में काम करें, सभी एजेंसियां एक दूसरे को पूरक हो तो परिणाम ज्यादा मिलेगा। ये सेमिनार भी नारकोटिक्स की समस्या के संबंधित जितने भी मंत्रालय है, जितनी भी एजेंसियां है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सेमिनार का जो विचार मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत से हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाए। नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में हमने हमारे अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले जब भी कहीं पर भी घटना होती थी, पकड़े जाते थे, तो उसको एक केस के रूप में देखा जाता। अब एनसीबी ने बहुत प्रयास के साथ एक एसओपी डेवलप की है कि ज्यादा मात्रा में नारकोटिक्स पकड़ा जाता है, बल्क नारकोटिक्स पकड़े भी गए थे। दरिया के बीच में जाकर हमारी एजेंसियां पकड़ कर लाई हैं। तो जब ज्यादा मात्रा में पकड़े जाते हैं, तब वो कहां जाना था वहां तक जांच को ले जाना है। और अगर कोई सेवन करने वाला पकड़ा गया है, तो वो पदार्थ देश की सरहदों में कहां से आया तब तक जाना है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जांच का ये अप्रोच है, ये समग्रता का अप्रोच है, इसने परिणाम लाने में हमें बहुत बड़ी मदद की। और मैं मानता हूं इस अप्रोच को हमने आगे भी ले जाना है। मित्रों, हमने देखा अभी लगभग 30,000 करोड़ के ड्रग को हमने 4 शहरों में 30,468 किलोग्राम ड्रग को आज जलाने का काम किया है। ये अभियान कई दिनों से चल रहा है और 15 अगस्त तक हम बहुत बड़ा ड्रग को जलाने का काम कर देंगे, क्योंकि कभी कभार ड्रग का धंधा करने वाले लोग ये जब्त ड्रग का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। उनके लिए हम कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कुछ आदेश पारित किए हैं, जिससे इसको जल्दी नष्ट करने में हमारी सरलता है। आज एनकोड पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। एनकोड पोर्टल के माध्यम से देश भर की सभी एजेंसियां एक पोर्टल पे न केवल इंफॉर्मेशन ले पाएगी, इंफॉर्मेशन तो ले ही पाएगी, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी होगा। देश भर में जितने नारकोटिक्स के केसों के बारे में लैंडमार्क जजमेंट आए हैं, वो सभी उस साइट पर उपलब्ध होंगे और इसके माध्यम से ट्रेनिंग और प्रोसिक्यूटर दोनों होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी ट्रेनिंग हो पाएगा और थ्रस्ट एरिया क्या है, इसको भी जिले कक्षा के पुलिस स्टेशन को भी आसानी से हम इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकेंगे। मेरा 5 राज्यों के पुलिस विभाग से संबंधित और नारकोटिक्स को डील करने वाली जितनी भी एजेंसियां, सबसे अनुरोध है कि ये एनकोड पोर्टल का आप जरूर उपयोग करिए और इसका उपयोग ही हमें आने वाले देश में, समग्र देश के अंदर एक ही तरीके से नारकोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, इसके लिए मदद कर सकता है। निदान डैशबोर्ड भी इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सहयोग से एकीकृत डेटाबेस का निर्माण हुआ है और एनडीपीएस अधिकृत एजेंसियां और एनसीबी के समस्त नार्को अपराधों का डेटा निदान के अंदर उपलब्ध है और कई प्रकार के अलग अलग मॉड्यूल्स भी इसके अंदर रखा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि निदान डैशबोर्ड का भी हम ढंग से अभ्यास करें, इसका उपयोग करें। आज स्वान दल का भी शुरुआत हुआ है और आगे पर मैं इतना भरोसा देता हूं कि हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वान में भी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्वान ही नारकोटिक्स के लिए ट्रेन करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है और बहुत कम समय के अंदर ये दिन आएगा कि नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करने वाले स्वान हमें बाहर से नहीं मिले। मित्रों, गृह मंत्रालय ने त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर काम शुरू किया है, संस्थागत संरचना की मजबूती। मैं आगे बात करूंगा एनकोड की।
सभी नार्को एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वय। सभी नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियां, चाहे स्टेट की हो, सेंटर की हो या किसी और डिपार्टमेंट की, उसका सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट और अच्छे से अच्छी इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना और विस्तृत जागरूकता अभियान और नशा मुक्ति, ये 3 मोर्चों पर हमने लड़ाई को डिवाइड की है और ये तीनों मोर्चों पर हम तेज गति से काम कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, और ये समाधान, ये समस्या तो एक प्रकार से ऐसी है जिसमें अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है तो विफलता के अलावे कुछ काम नहीं। अगर हम युवाओं को नशे की लत से मुक्त कराने का अभियान तेज नहीं करेंगे तो कितनी भी नारकोटिक्स पकड़ लो, हम फेल हो जाएंगे। और अगर कितने भी युवाओं को आप नशे से मुक्त कराओगे, अगर नए युवा इसके अंदर जोड़ने का अभियान, जागरूकता अभियान नहीं करोगे तो फेल हो जाओ। और ये दोनों कर लिया मगर नारकोटिक्स को नहीं रोक पाए तो भी फेल हो जाओ। अतः ये तीनों चीजों पर, ये तीनों बिंदुओं पर हमने एक समान होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़े। मित्रों, एनकोड को जुलाई 2019 में हमने रिस्ट्रक्चर किया। इसके अंदर 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म बनाया गया है। शीर्ष स्तरीय एनकोड समिति है, कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति है, राज्य स्तरीय एनकोड समिति है और जिला स्तरीय एनकोड समिति जो डीएम की अध्यक्षता में है। राज्य स्तरीय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है और भारत सरकार के अंदर 2 लेयर और है। ये 4 स्तर पर एनकोड मैकेनिज्म काम करता है और अब इसकी बैठकें भी मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि रेगुलर हो रही है। फिर भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैठकों पर ज्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा, ज्यादा वजन देना पड़ेगा, क्योंकि अंततोगत्वा परिणाम लाने वाली एजेंसी तो डिस्ट्रिक्ट में ही है, जिससे सबसे पहले इस समस्या से मुकाबला करना है वो एजेंसी डिस्ट्रिक्ट में बैठी। तो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय एनकोड समिति की बैठकें ठीक हो, सारे मुख्यमंत्री और गवर्नर साहिबान यहाँ बैठे हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके अति व्यस्त कार्यक्रम में आप सप्ताह में 3 घंटा और 30 दिन में 1 दिन नारकोटिक्स के लिए लगा दें तो मुझे लगता है कि अभियान बहुत तेजी के साथ चले। मैंने भी मेरी डायरी के अंदर एक टाइम नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के लिए फिक्स किया हुआ। ये अप्रोच जब तक हम नहीं लेंगे, ये कल्चर हमारी ऑफिस से शुरू नहीं होगा, तब तक ये परकोलेट नहीं होगा। अगर हमारी ऑफिस से शुरू होता है तो अपने आप डिस्ट्रिक्ट तक चला जाएगा और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय एनकोड समिति एक्टिवेट हो गई और परिणाम लाने लगी तो मल्टी डायमेंशनल परिणाम आएंगे और बहुत तेजी से परिणाम आएंगे। मित्रों, एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के निर्माण की आवश्यकता थी। एनसीबी ने मानस हेल्पलाइन के लिए एक प्रयास चालू किया है। मुझे आशा है कि कुछ ही दिनों में हम इसको जनता के सामने रख देंगे। मुझे बहुत खुशी है मित्रों, 21 राज्यों ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया और इस क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम है, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और मुख्य सचिवों और डीजीपी को अनुरोध करना चाहता हूं, जो राज्य बाकी रह गए हैं वो जल्दी गठन करें और जहां गठन हुआ है तो स्पिरिट को नीचे तक ले जाने के लिए उसको एक्टिवेट होने का हम काम करें। ड्रग और डार्कनेट पर लगाम, ये हमने बहुत तेजी से, एक ऐसा एरिया है जहां भी बहुत काम करने की जरूरत है। डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का व्यापार, ये दो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने अभी ही डार्क वेब और क्रिप्टो मुद्राओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। हम प्रशिक्षण देने का भी प्रयास कर रहे हैं और मादक पदार्थों की तस्करी और क्रिप्टो करेंसी आज एक दूसरे का एक स्वरूप से पर्याय बन गए और इसे हमें राज्य स्तर पर भी बहुत तेजी के साथ इसके साथ जुड़ना पड़ेगा।
बहुत सारे हैकेथॉन कर बच्चों को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स को भी जुड़ना पड़ेगा। हम नहीं जानते समाधान, कंप्लीट समाधान कहाँ से मिला, परंतु प्रयास करने से ही मिलेगा। तो इस दिशा में हम सब आगे बढ़े। एनसीबी ने डाकथान प्रतियोगिता की भी संकल्पना की है और डाकथान संबंधी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से हम समाधान ढूंढने का पूरा प्रयास करें। ड्रग, डिजिटल और संबंध फॉरेंसिक्स। मित्रों, एनसीबी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। इस समझौते के तहत हम मॉडल फॉरेंसिक लैब कैसी हो सकती है, किसी भी राज्य को मॉडल फॉरेंसिक लैब बनानी है तो हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी उनको पूरा गाइडलाइन देगा, एनसीबी पूरा गाइडलाइन देगा। और इस दिशा में एक एसओपी भी बनाने के लिए ये दोनों प्रयास कर रहे हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, सब लोगों ने कहा कि पंजाब में समस्या ज़्यादा है। मैं मानता हूँ पंजाब में समस्या ज़्यादा है, बॉर्डर का स्टेट है और समस्या ज़्यादा है, इसलिए हमने वहाँ प्रयास भी ज़्यादा करना पड़ेगा। भगवंत मान साहब हमें ज़मीन और मकान दे दे, हम फॉरेंसिक लैब भारत सरकार की ओर से अमृतसर में भी बनाएंगे और एक एनसीबी का वहाँ पर एक छोटा सा सेंटर भी खोलेंगे जो ट्रेनिंग वगैरह करे। क्योंकि हम समस्या का जब तक समाधान करने के लिए जॉइंट एफर्ट्स नहीं करेंगे, भारत सरकार पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए खड़ी है। हम जानते हैं कि पंजाब के युवा को नशे से बाहर निकालना, जो भी एफर्ट्स करता है इसके साथ हम खड़े हैं। और चंडीगढ़ के सेंटर के अलावे अमृतसर में एक सेंटर भी बनाएंगे और फॉरेंसिक साइंस का हम लैब भी बनाएंगे और पंजाब के नशा के खिलाफ की जो लड़ाई है उसको भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सहयोग करेगी, इसका मैं आश्वासन देना चाहूँ। मित्रों, अवैध ड्रग की खेती, इसके लिए भी राज्यों ने और बहुत खबर আছে কিন্তু সময় সময় বাণিজ্যিক বিরতি।